Hello, all of you. Welcome to GEG AP session, our usual Saturday sessions for Google Educator groups of Ahmedabad and Pune. And Dr. Vishal, we are very happy to have you back on live stream with us. Thank you very And much, Rachna. yeah, so and we also see one special person on the screen, that is our session expert, Mrs. Usha Chabra today. I'll give you more details about her soon. But before that, I just want to give you a little introduction of what GEGs are, and because we have a lot of audience who will be joining us for the first time. So GEGs mean Google Educator Groups of India. So we are passionate group of voluntary educators initiated by Google who come together to share, inspire, and empower all our educators about using technology in the classroom. So our sessions are related to helping each other learn how every subject teacher has used technology in their classrooms. What are different ways you can help students learn it and use it for their assignments and other purposes. So, Dr. Vishal, you have something to say about our GEG Ahmedabad and Pune? Yes, so GEG is basically, as Rashma said, that they are a group of all passionate educators, and our motto is to learn from each person how they are utilizing technology for their respective subject. So today we have got a very good subject expert, Mrs. Usha Chabra from Hindi as a language teacher. She is teaching Hindi, and we are going to learn much more things from her. And we are all set to learn from. So we're not wasting any time. We're just Yes. giving the stage to Usha ma'am, and let us So learn from her today. I'll give a quick intro of Usha ma'am. Usha ma'am, welcome to our GGAP session. We are very grateful for you to accept the invitation and come share your expertise. So Usha Chabra ma'am has taught Hindi for 24 years at Delhi Public School Rohini, and she has closely observed all the challenges that both teachers and students have been facing, engaging them in Hindi language. तो हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है. सबसे प्रॉब्लम आया लोगों को जब हिंदी ऑनलाइन सिखानी पड़ी. तो इस वजह से आफ्टर हर ऑल हर एक्सपीरियंस दैट शी हैज अर्नड, she herself started learning all these digital tools, and she came up with a great plan as to how she can use it in her classroom. So in today's session, she'll be showing us a lot of different ways and different apps that she has used in her classroom. Along with this, Usha Chabra ma'am is a Karmveer awardee, an educator, and an author and a storyteller. So she is a versatile educator. She has appeared in a lot of different forums where she has given her expertise. And she has taken sessions at World Book Fair, Nehru National Museum and Library, National Museum, National Bal Bhavan, Rajiv Gandhi Foundation, Kanpur Literature Festival, Katha Carnival, and the list is unlimited. Like, if I read the whole list, हम लोग पूरा session ले लेंगे उषा मैम का. So welcome Usha ma'am, and especially in these current times, it is very, very prestigious for us to have somebody like you to share your expertise. So welcome ma'am. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी और रेशमा जी, जी पुणे, अहमदाबाद. ये अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला. मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं शेयर करूँ. सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल स्कूल का एक्सपीरियंस रहा तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा जुड़ी रही. बहुत साल पहले ही, बहुत साल हो गए, जब पीपीटी नया शुरू हुआ था तब मैंने उसमें अपना एक पीपीटी बनाया था बसंती हवा का. और उसके बाद उसमें मैंने अपना वो जो कहते हैं अपनी नरेशन उसमें पीछे मैंने साउंड के साथ दी थी. और हमारे स्कूल में एक बहुत बड़ा पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए थे, बल्कि वर्ल्ड से बोल सकते हैं, हिंदी कैंप लगा था. उसमें मैंने वो प्रेजेंटेशन दी थी कैसे हम अपनी, उस समय पीपीटी नया था और उसमें साउंड अपनी आवाज दे के हमने पूरा लेसन प्लान उनको पूरा. तो वो शुरुआत थी मेरी जब मैंने वहां से और मुझे बहुत शौक रहा है कि नया क्या आ रहा है, नया क्या. तो ये मुझे लगता है हर
टीचर के मन में ये होना चाहिए नया क्या आया और हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इसमें से कुछ भी अगर ले लेते हैं तो बच्चों की तो मजे हो जाते हैं। और मेरी क्लास में बच्चे बड़े एंजॉय करते थे। और मैं, जैसे आपने बताया कि मैं स्कूल में पढ़ाती थी डीपीएस रोहिणी, जहाँ से मैंने बहुत 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 कुछ सीखा। वो मेरी कर्म भूमि रही है। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया कि क्योंकि मैं स्टोरी टेलर भी हूँ, और एक समय ऐसा आया कि मुझे लगा कि बहुत से बाहरी दुनिया भी मुझे बुला रही है, जिसको कहते हैं कॉलिंग, है ना। आप अपने आप को रोक नहीं पाए और फिर हमने अपनी उड़ान शुरू की। तो जब उड़ान शुरू की तो अब मैं देश विदेश के लोगों को भी हिंदी पढ़ा रही हूँ। तो मैं, आप कह सकते हैं, मैं नर्सरी पे 1 के बच्चों से लेके एडल्ट तक के बच्चों को हिंदी सिखा रही हूँ। सिंगापुर, यूएस और अलग अलग जगह से, और हमारे बैंगलोर से भी। तो आप, ये मदुरई से भी एक बच्चा है जो पूरी तरह से बिल्कुल हिंदी नहीं आती, तो उसको कैसे सिखाना, बड़ी सारी चीजें मैं देख रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ साइकोलॉजी को। और स्कूल छोड़ने से पहले ही जब लॉकडाउन लगा था मार्च के एंड में, ठीक है, तो मार्च के एंड में लॉकडाउन लगा, और उसके बाद से मैंने स्कूल में ही तुरंत तुरंत हम लोगों ने शुरू किया। हमारे स्कूल में भी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती रही और उससे सीखती रही मैं। और बच्चे मेरे जो थे ना क्लास के, वो बड़े मस्त। तो उनको मैंने बोला, बेटा जी अब हमें ऑनलाइन करना है, मजेदार करना है काम। तो उनको थोड़ा सा उत्साहित किया और वही करने लगे। मैंने उनको एक ट्रिक सिखा दी और वो थी हिंदी टाइपिंग। रेशमा मैम, मानिए हिंदी टाइपिंग जो है बहुत मुश्किल काम लगता था। अब तो मोबाइल में हम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जब आए ना, सब अचानक से आए, गूगल डॉक्स पे कैसे काम करना है, सब कुछ बहुत मुश्किल था। लेसन प्लान वगैरह सब ऑनलाइन हो गए, पेपर्स ऑनलाइन हो गए, गूगल फॉर्म्स, ये सब हमारे स्कूल में उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी। लेकिन साथ ही साथ मैंने बच्चों को टाइपिंग सिखा दी, 6, और जो मेरी क्लासेस है 6, 7, 8। और मैंने जब उनको सिखाया ट्रांसलिटरेशन पे, जो मैं आज आपको दिखाऊंगी, तो उसमें क्या हुआ, बच्चे टाइप करने लग गए। और जब वो टाइप 2 मिनट में तो सीख जाते हैं बच्चे, और है कुछ भी नहीं, इतना आसान। मैम ये तो बड़ी मजेदार चीज है। और मैंने कहा चलो अब तुम लोग क्विज बनाओ। अब चलो, ये टूल्स का नाम मैं लेती थी, करने वो करते वो थे, मैं ना बोलूं, मैं करती थी। करते बस मेरा काम था स्पार्क देना। चलो बेटा आज हम वर्ड वॉल पे काम करेंगे, आप एक काम करिए, क्रिया पे आप बनाइए, इस पे ये बनाइए, इस पे वो बनाइए, काहूट पे आप बनाइए। तो हुआ क्विजेस में बनाइए। तो बच्चों ने बनाया और क्लास में अपना वो शेयर कर देते थे, अपना जो कहते हैं ना नंबर जो होता है ना, लिंक शेयर करते। और हम लोग उसको टीम्स में, हमारे स्कूल में टीम्स था, उसमें वो बच्चे शेयर, और इतने सारे बच्चे एक साथ, मैम मैं फर्स्ट आया, मैं ये आया, मैं वो। मैंने कुछ नहीं किया मैम। मैं यही बोलना चाहूंगी टीचर्स को आज यहाँ, टाइपिंग में बहुत समय लगता है, आप बच्चों को सिखा देना जैसे मैंने किया। और ये मैं चूंकि कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रही हूँ, बच्चे बनाते हैं, बच्चे करते हैं और बहुत आनंद से करते हैं। और उनको ये भी होता है कि अगर उन्होंने ठीक नहीं किया तो मैं फिर बताती, बेटा इसमें हम ये कर सकते थे, क्योंकि अगर बच्चों का नहीं आया, मैम ये ठीक नहीं था, बच्चों को भी पता लग रहा है कहाँ गलत। तो हम क्या चाहते हैं, बच्चों को हमने इंचार्ज बना दिया, उन्हीं को पता है कि मैम गलती हो गई, मैं आगे से और ठीक कर लूंगा। मैंने कहा इसको एडिट करके रख ले बेटा, फिर से रिविजन के काम आएगा। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे टूल्स है हमारे, ऑनलाइन क्या क्या हो सकता है, जितना मैंने सीखा, और सब मुझे नहीं आता था। अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने ग्रुप में दिया कि और कौन से टूल्स यूज कर रहे हैं। तो एक वंदना जी है, उन्होंने भी मुझे कुछ टूल्स के नाम बताया, मैंने फटाफट उसको टाइप किया, देखा, फिर कुछ छोटा सा एक वर्कशीट बना के खुद देखी कि भाई मैं बोलने जा रही हूँ तो मैं भी कुछ पहले करके। तो बहुत कुछ अवेलेबल है, कर सकते हैं हम लोग। तो जरा शुरू करते हैं, देखते हैं मेरे पास क्या है। और मुझे पता है देखने वालों के पास मुझसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एक दो करके सभी के पास बहुत भंडार है, सभी कर रहे हैं, पर मेरे पास जो है, मैं सोची चलो उसको साझा किया जाए। तो हम शुरू करते हैं रेशमा जी। Yes, thank you so much, Usha ma'am. We have lot of comments coming in जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपको कि थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स रखिए, बिकॉज हमारे पास Okay, okay, बहुत सारे okay. ऑडियंस हैं So जो I बाहर से will, ज्वाइन हो रहे हैं। so तो I'll just आप हाँ, add one line here that you being a teacher in the school, you should just do the work of a facilitator. facilitate. Don't be a teacher and big person. No, bolo bachcha, I don't even know anything. You are the master. You know everything. Ma'am, we don't know typing. I said, I will teach you typing, the work of a typist. But you are the master. You will create quizzes. And so they have done wonderful work. And I was amazed.
I was amazed. I will say that. So today I'm Yeah. going to share some of the tools which I had used in the classroom, and even now also I am using. I have tried to make some worksheets. As I said, I tell children only to do everything. So when you have so much of work, why don't you share your workload with children? And children are so happy to do that. Make quiz and ma'am, I have made the presentation. Let them do. Okay, chalo. So let me start Okay. then. Yes, please, उषा मैम आप स्टार्ट करिए. जी. तो यहाँ आपको मैम दिख रहा है रेशमा जी, ये दिख रहा है आपको? हाँ. Yes, yes. तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी, ऑनलाइन टीचिंग जो है यूजिंग आईसीटी टूल्स, देर आर मेनी. यू कैन सी हियर पैडलेट, वर्डवॉल, काहूट, बट the basic is Google Hindi transliteration and Google Doc voice testing. So first of all, I would like to take you for the typing, the most basic thing. Many of you know it, I know, but if you don't know, then we can go for it. Okay, so let us go that way. So this is Google Hindi transliteration. So I have selected, रेशमा जी आप देख पा रहे हैं इसको? You are able to see रेशमा मैम? So यहाँ पर हमें क्या करना होगा? I am typing मैं, MAIN, and then अभी यहाँ पर ये मेरा वो नहीं चल रहा है. This is my net is not responding. Wait. हाँ, MAIN. If I type MAIN, then it becomes मैं. So how I am doing? I'm showing it to you again. मेरा. So I will type मेरा and then enter. नाम, then enter. मेरा नाम उषा है, enter. And then full stop. यहाँ पर सिंपल एंटर या स्पेस बार दबाते हैं आप तो ये छप जाता है. And then I can take it to my document, Microsoft Word. I can paste it there. So I type the things online and I can paste it there. मैं वहां पर पेस्ट कर लेती हूँ अपने गूगल डॉक्यूमेंट में, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में. ठीक है, लेकिन कई बार इतना टाइपिंग कौन करे, तो सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो थी गूगल डॉक्स. सो आई विल शो यू how we can go for Google Docs. तो आप इस तरह से अपना पर्सनल गूगल डॉक्स खोल सकते हैं, ब्लैंक में जा सकते हैं और यहां से ये सब खुल जाएगा. अब आपने देखा जो यहाँ खुल गया, यहाँ टूल्स पे जाएंगे, गो टू टूल्स and then over there you go to voice typing. You go to voice typing and then here the selection you have to take the language selection as Hindi. So you are taking Hindi as your language selection. It is here. अब आपने हिंदी को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ लिखा आया क्लिक टू स्पीक. अब मैंने यहाँ पर किया, अब ये रेड आ गया. आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ सबका ध्यान रख रही हूं. आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सब आते चला जा रहा है. देखिए जब तक मैं स्टॉप नहीं करूंगी. अब मैं स्टॉप कर दिया. अब मेरे पास ये डॉक्यूमेंट आया. आपने देखा यहाँ फुल स्टॉप वगैरह नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने सिलेक्ट कर लिया. इसको सिलेक्ट करके मैं कहाँ चली गई? गूगल. कहाँ चली गई मैं? गूगल ट्रांसलिटरेशन में चली गई. ठीक है, तो वहां पर हमने क्या किया? गूगल ट्रांसलिटरेशन में देखेंगे. ये मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुल जाएगा और मैं इसको अब यहाँ जाके करेक्शन कर लूंगी. जिनके लिए है कोई दिक्कत नहीं है, आप जिनके पास नहीं है ऑप्शन, आप ये सब कर सकते हैं ऑनलाइन. तो ये वाला तो जरूरत नहीं थी. ये आप क्या कर रहे हैं? अब मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ. मैं यहाँ सबका ध्यान रख रही हूँ. अगर आपको चंद्र बिंदु लगाना है तो आप यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाएंगे और इस तरह से करने के बाद आपने ये क्लिक कर दिया, बस हो गया आपका काम खत्म. तो इस तरह से मेरा डॉक्यूमेंट बन गया. अब मैं क्या करूंगी? मैं जाके एक वर्ड फाइल खोलूंगी और ये वर्ड फाइल में जाके मैं यहाँ पर कॉपी कर दूंगी. समझ लीजिए ये मैंने कर लिया. अब मेरा सारा पेपर पहले मैं वहां पर सिर्फ टाइप करके लिख लूंगी, उसको ट्रांसलिटरेशन में जाके मैं उसको एडिट कर सकती हूँ और फिर उसको यहाँ लाके मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लगा दिया.
ये मेरा तैयार हो गया। अब अगर पेपर कभी बनाना है ऑनलाइन गूगल पे, तो यहाँ से मैं आसानी से बना सकती हूँ, क्योंकि गूगल पे डायरेक्ट टाइप, गूगल फॉर्म में डायरेक्ट टाइप नहीं कर सकते हिंदी, तो हमने टाइप करके सारा यहाँ रख लिया, उसके बाद हम यहाँ से पेस्ट करते जाएंगे। तो इस तरह से ये जो मैजिक है, ये मैजिक मैंने अपने बच्चों को सिखाया, और उसका ये फायदा हुआ कि बच्चे जो है गूगल डॉक वॉइस टेक्सटिंग और गूगल हिंदी ट्रांसलिटरेशन से टाइपिंग सीख गए, और मेरा बहुत बड़ा काम आसान हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो एक बहुत अच्छी चीज रही, वो है, जो अच्छी चीज रही वो है, मैम एक क्विक क्वेश्चन, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ जो अभी बताएं। गूगल डॉक्स एंड ट्रांसलेट पे आया कि लोग पूछ जी। रहे हैं कि क्या हम इसको आईपैड पे भी यूज कर सकते हैं? देखिए मैं तो अपने इसमें कर रही हूँ, आईपैड का होता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे Yeah. पास तो अपना लैपटॉप है और कंप्यूटर है, मुझे उसका होता है, जरूर होता है शायद। क्योंकि आई थिंक आप अगर डायरेक्टली जाके इफ यू टाइप ऑन द ब्राउजर गूगल ट्रांसलेट सर्च करेंगे हाँ, तो हाँ, आपको गूगल ट्रांसलेट ओपन हो हाँ, जाएगा। ये ट्रांसलेट, दिस इज ट्रांसलिटरेशन। ट्रांसलिटरेशन, ओके हाँ, ठीक है, तो उसमें ओके। यहाँ पर देखिए कितना आसान है, मेरा लिखा मैंने इंग्लिश में और एंटर दिया, स्पेस बार दबाया, मेरा बन गया, है ना, मेरा नाम, फिर दबाया, फिर उषा है, देखिए मैं लिख रही हूँ, है ना, तो या उषा आ जाएगा। आप सीधा स्पेस बार दबाते जाएंगे, देखिए आ जा रहा है ना, स्पेस बार दबाया, अब एक फुल स्टॉप दबाया, तो ये कितना आसान है। टाइपिंग सिखा दो बच्चों को, मैं तो ये कहूंगी, और उसके बाद देखिए कितना मजा आपकी क्लास में होगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा। या ठीक वेरी है, इंटरेस्टिंग, हाँ, यस। हाँ, आप ठीक है, कंटिन्यू करिए, यस। हाँ। और अब जो मैं आ रही हूँ वो एक बहुत अच्छा टूल है जिसको कहते हैं पैडलेट। ये पैडलेट है, समझ लीजिए आपके सामने मैंने अपना पैडलेट खुला हुआ है। ये पैडलेट हमें सिर्फ 5 मिलते हैं फ्री, ठीक है, तो इसके अलग अलग डिजाइन होते हैं जो हम बना सकते हैं। समझ लीजिए मुझे किसी के सामने कोई प्रेजेंटेशन देनी है, मैं किसी को अपनी कोई बात बताना चाहती हूँ, तो मैं इस तरह से यहाँ पर मैं ऐड करती जाऊंगी। देखिए अगर मुझे कुछ लिखना है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लिख सकते हैं। समझ लीजिए मैं लिख रही हूँ AWERT, समझ लीजिए कुछ लिखा मैंने, ठीक है, और मैंने ये पोस्ट कर दिया, तो आप देखेंगे ये मेरे पैडलेट के नीचे आ गया एयरवर्ड। समझ आ रही है मेरी बात? तो इस तरह से हम पैडलेट में अपनी कोई भी चीज डाल सकते हैं, यहाँ पर हम अपलोड कर सकते हैं फाइल, यहाँ लिंक हम शेयर कर सकते हैं, यहाँ सीधा गूगल से जा सकते हैं, यहाँ अपनी कोई फोटो लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। देखिए ये सारी चीजें यहाँ पर जुड़ सकती हैं। आपको लेकिन क्या करना है, इसको एक्सप्लोर करना है, जितना आप खुद एक्सप्लोर करेंगे उतना सीखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए मुझे आपको आज अपनी वेबसाइट दिखानी, तो मैंने अपनी वेबसाइट का यहाँ पर पेज अपलोड किया है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे ushachhabra.com पे। दूसरा मैंने यहाँ पर अपनी YouTube का लिंक शेयर किया है, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगी तो मैं सीधा YouTube पे चली जाऊंगी, मेरे अपने YouTube पे। तो अगर मुझे किसी को अपने बारे में, जैसे रेशमा मैम मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी, तो मैं ये सिंपल इतना ही कैरी करूंगी अपने साथ, एक पैडलेट बस, और उसके बाद पूरी दुनिया आपके सामने खुल जाएगी। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन यूज आवर पैडलेट इन आवर क्लासरूम इन अ वेरी नाइस वे टू कैरी आवर लेसन प्लान्स, videos. Imagine that this is my today's lesson, because I am going to take a lesson today with you. So what I have done, I have put all my lesson in one Padlet. This is my Padlet, and I kept adding here and wrote here post. So you can see here, this is my presentation number 3 is padlet.com. I am going to click here. So you can also share this padlet.com, so they can just reach. I'm just putting a click and you all will come together with me. This is my Padlet, and I have used it so nicely in my classroom. When I was teaching, मैं जब पढ़ा रही थी तो एक बार हम लोग का आया कि हमें कविता लेखन करानी है बच्चों को, ठीक है जी, तो मैंने उनको टॉपिक दिया, बेटा बोलती प्रकृति पर आपको एक कविता बनानी है। So everyone made. Then I told them to use my Padlet. So what I did, I had created my Padlet and shared the link. I shared the link from here. Over here, they have copy link to clipboard. So I copied the link to clipboard as Reshma ma'am will do. And now she will put it over there. So you all can add it over here. So children, what they did, as they did not know how to type, or they made the poems at home with pen. So they had the image. They clicked the image. Image उन्होंने click किया, और उसके बाद उन्होंने, देखिए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ प्लस साइन, प्लस के बाद मैं अगर कुछ लिख रही हूँ यहाँ पर, you can directly write anything.
and then you put this, now it has gone. So you can say कि 40 बच्चे अपनी बोलती प्रकृति के नीचे उन्होंने जितने बच्चों ने पोएम बनाई थी सारी पोएम यहाँ आ गई. इसी तरह से आपने क्या, मैंने एक और बहुत अच्छा काम किया था जब रिवीजन कराई, व्हेन आई डिड द रिवीजन. सो व्हाट आई डिड, मे बी फॉर दिस आई जस्ट रोट इट ओवर देयर, ओवर हियर व्हाट आई डिड, आई चेंज द टॉपिक. हियर यू कैन डू दैट. Okay, you can rename the columns. So what I did, maybe I renamed first chapter, maybe हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के. So I told them, children, what you have to do, you have to make questions and keep posting here. So what I did, I divided my class into 4 or 5 lines. 4 lines, there were 4 rows. So 1 chapter per row. So if I have 5 chapters or 4 chapters, what happened? I made this rows. Maybe here I rename this as some other chapter, maybe A, B, C, D. Okay. Then here, so this column, I gave it to 10 children and said, you have to prepare questions on this lesson. So, किसी ने इस lesson पे बनाया, किसी ने इस पे बनाया, किसी ने इस पे बनाया, अलग अलग बना लिए. And then in the class, they started adding, and you could see so many questions popping up. Someone is writing here, then posting it, then someone is writing in this column, and then they had asked each other questions. So this is a very good method to revise, and I have done it, so I can say it with surety, it works wonders in the class. बहुत मजा आता है क्लास में जब हम इस तरह से बच्चों को बोलते हैं कि आप खुद अपने क्वेश्चंस लिखो. ये बच्चे खुद ही क्वेश्चन लिख रहे हैं और यहाँ पर डाल दे रहे हैं. ये फिर लिख रहे हैं, यहाँ सब रोज ने अपने अपने क्वेश्चंस लिखे, फिर हमने डिस्कशन की और इतने सारे क्वेश्चंस, और ये चीजें उनके साथ रहती हैं. ये चीजें जो है इनके साथ रहती हैं क्योंकि ये हमने लिंक शेयर कर दिया. इनको जब कभी यूज करना होगा, दे कैन हैव सो मेनी क्वेश्चंस. नाउ इफ अ टीचर वांट्स टू गिव क्वेश्चंस, व्हाट हैपेंस, एवरी टाइम यू आर मेकिंग द क्वेश्चन, आप ही बना रहे हो, सेम चीजें चल रही है. इट्स बेटर लेट देम make their own questions. The more they make questions, what happens? The more they learn, the more they go deeper into the lesson. So this is the best thing I feel. Even in grammar there are so many topics. तो मैंने क्या बोला कि चलो बेटा एक काम करते हैं, आप एक काम करो, आपने ना सर्वनाम पे बनाना है. तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, सर्वनाम पे बना दिया. ठीक है. किसी को मैंने बोला नहीं बेटा तुमने क्रिया पे बनाना है, तो क्रिया पे. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अलग अलग उनको ये दे दिए ऑप्शन. तो किसी को क्रिया के ऊपर क्वेश्चन तो वहां लिख दिया, किसी को यहाँ है. एंड यू कैन ऐड सो मेनी थिंग्स ओवर हियर, है ना. तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, जानदार चीज है. मजा आ गया था मुझे. देखिए आप यहाँ लिंक भी डाल सकते हैं. अब समझ लीजिए मुझे अपने YouTube का लिंक डालना है. मैं कोई भी YouTube का लिंक डाल के उसको मैं जैसे ही डालूंगी तो क्या होगा, देखिए मैं बताती हूँ. यही वाला चीज सामने आ गया. अब ये जो लिंक है, देखिए आप लोग सब जितना कुछ लिख रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है, और यहाँ से ये लिंक मैंने कॉपी कर लिया, यही चीज आ गई. हाँ. और फिर मैंने क्या किया, वो मैं उस पे चली गई और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया, और ये देखिए क्या हुआ. नाउ दैट लिंक इज कमिंग हियर. तो हमारी क्लास में हुआ क्या, कुछ बच्चों ने बोला मैम ये जो आप दिखा रहे हैं ना, यही चीज ना क्या हो रहा है कि हम लोग को ना इसके वीडियो मिल गए हैं इसी लेसन के. मैंने कहा डाल दो. सो दे हैड पुट द वीडियो. नाउ दिस इज वर्किंग. Now see, if I click over here, we will come back to our own YouTube, what you are watching. तो it is so live. इसी तरह से हमने क्लास में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया कुछ. ठीक है, सब बच्चे ड्राइंग करें, प्रदूषण पर आप बनवाते हैं, आप स्लोगन राइटिंग कराते हैं, उनको बोलो यहाँ पर अपना पोस्ट कर दो, और एक दूसरे का बच्चे इतनी आसानी से देख पाते हैं. दैट इज वंडरफुल थिंग टू डू इन द क्लास. बच्चों का इंटरैक्टिव हो जाता है, मस्त मजे बातें होती हैं. तो आई वॉज टेलिंग यू दैट इन दिस वे यू कैन हैव द पैडलेट वेयर यू कैन टेक योर लेसन प्लान ऑफ द डे. इस तरह से देखिए आप लोग सब जो लिख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ सब आ रहा है, ये देखिए. अरे वाह, अभी लिख दिया लोगों ने. आई एम सो हैप्पी यू आर एडिंग इट हियर. सी दिस इज सो लाइवली एंड यू आर फीलिंग सो ग्रेट अबाउट इट.
राइट। तो ये पैडलेट बहुत अच्छा, लेकिन हमें सिर्फ 5 मिलते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पिछला हटा के फिर नया कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द क्लास नया नया करते जाइए, या फिर खरीद लीजिए। खरीदने से तो बहुत कुछ लाभ है, लेकिन जो नहीं खरीदते 5 में भी हो जाता है, जैसे आप बार बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिर हमारी वो पुरानी चीज खो जाती है, बस ये होता है। अब आइए हम पॉपलेट में चलते हैं। पॉपलेट भी मुझे वंदना मैम ने बताया था अभी 2 दिन पहले, और मैंने ट्राई किया। तो मैं मैम पॉपलेट पे जा रही हूँ, आप भी वहां पर शेयर कर सकते हैं। और पॉपलेट पे देखिए चले कितना सुंदर मैंने बनाया, देखिए ये बहुत ही अच्छा है, इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं। और एक बात बताऊंगी, ये सबसे पहले तो जो बने हुए हैं उनको देख लीजिए, जो बने हुए उनको देखिए, व्यू ऑल में जाएंगे ना तो आपको 1000 आइडियाज मिल जाएंगे वहां से, ठीक है। और जब आप सोचिए मैंने ये कैसे बनाया, कि मैंने सोचा चलो तितली पर हम आज बच्चों को कुछ सिखाएंगे। आई वांट टू टेल समथिंग अबाउट तितली टुडे। सो नॉट ओनली इन हिंदी, यू कैन डू इन एनी लैंग्वेज, राइट, इन एनी सब्जेक्ट ऑल्सो। So this is mind mapping. So I thought, okay, when I'm going to tell them about the titli, what I can do, I can just put them a picture of this first. ओके तो मैंने यहाँ पिक्चर डाल दी, नेट से लिया, मैंने डाउनलोड कर ली इमेज। फिर मैंने सोचा अरे इनको एस्थेटिक सेंस दे देते हैं थोड़ा सा, तो हमने क्या किया, पोएम डाल दी, और उसके बाद तितली की एक फोटो डाल दी, और साथ में मैंने यहाँ पर इनको कुछ वर्ड्स भी दे दिए। इससे क्या हुआ कि बच्चों के सामने बहुत सारे वर्ड्स आ गए, फूलों पर मंडराती, फिर इसी तरह न्यारी, फिर इसी तरह रंग बिरंगी। तो क्या हुआ, बच्चों के सामने माइंड मैप आ गया ये वाला, और साथ में तितली पर एक पोएम भी आ गई, और साथ में तितली का जीवन चक्र आ गया। तो एक तरह से इतनी सुंदर चीज बच्चे जब सामने देखते हैं, और मजे की बात ये है कि अगर आप इसको खरीदते हैं, है ना, ये तो एक ही मिलता है फ्री में, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, है ना, आप इसको शेयर कर सकते हैं, ऐड कोलैबोरेटर, जैसे मैंने समझिए रेशमा मैम को कर दिया, तो आप भी रेशमा मैम इसमें इनवाइटेड अगर हैं तो आप भी कुछ पॉपलेट इसमें डाल सकते हैं, समझ आ रही। तो इस तरह से हम, हाँ, पूरी क्लास भी, अगर एक्चुअली अगर ये पेड हो जाता है तो आप भयंकर काम कर सकते, बहुत बढ़िया बढ़िया काम हो सकता है इसके साथ। एंड आई तो थिंक ये माइंड मैपिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने कहा कि वी वांट स्टूडेंट्स टू बी क्रिएटर्स, तो अगर उनको क्रिएटर्स हैं तो दे हैव टू थिंक बिहाइंड कि क्या इसके पीछे सोच होनी चाहिए, क्या मैं इसके बताती हूँ, अगर आप बात करें हिंदी की, समझ ले हम भेदों के नाम करवाते हैं, तो एक बच्चे को बोला कि भाई तुम कोलैबोरेट करो 5 बच्चों के साथ, ठीक है, सर्वनाम का एक एक उदाहरण चलो ऐसा बना लो, तो समझ लीजिए तितली की वजह से सर्वनाम लिख दिया, और जितने भेद हैं उनके नाम लिख दिए, चलो सब लोग ऐड करो अब इसमें नाम अपने, ठीक है, अपना सेंटेंसेस ऐड करो। तो क्या है, इस तरह से हमारी पूरी क्लास माइंड मैपिंग के साथ सामने आ जाएगी। राइट बिल्कुल। एंड आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट अगर लाइव करने को मिलेगा उनको, तो दे कैन सी व्हाट अदर्स आर आल्सो डूइंग, दूसरे लोग बिल्कुल क्या बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा बनेगा। और उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर ना, यहाँ जाके आप ये भी कर सकते, प्रिंट एंड पीडीएफ। तो जैसे मैंने किया, अगर आपको ये दिख रहा, मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा, ये चीज मैंने क्या किया, इसका प्रिंट आउट ले लिया, मेरे हाथ में अभी प्रिंट आउट है इसका। यस दिख रहा तो है। अगर आप, उषा मैम आप दिखा हाँ, सकती हैं कैमरा के पास अच्छा लाके। अच्छा अच्छा, ये दिख रहा है आपको, मेरा ये कैमरा दिख रहा है ये? यस दिख रहा है। तो ये मैंने प्रिंट आउट ये निकाल लिया, लेकिन बस एक ही फर्क है कि चूंकि मैं फ्री का काम कर रही हूँ, एक ही पैडलेट है मेरे पास, तो मैंने इसको हटाया नहीं, ये निकाल लिया, है ना। तो उसके बाद क्या, आपने शेयर कर लिया, और उसके बाद आप नया पैडलेट पॉपलेट फिर से बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। बस सबसे बड़ी बात है कि आपको क्या करना होगा, अच्छा, लेकिन ये इंटरैक्टिव नहीं होगा। जब आपने ये निकाल लिया, ये इमेज आ गई है ना, ये अगर इमेज बन गई तो ये अब इंटरैक्टिव नहीं हो पाएगा, लेकिन क्लास में ये इंटरैक्टिव हो सकता है। जब आप शेयर कर देते हैं लिंक इसका, तो सारे बच्चे चूंकि ऑनलाइन में हैं, और वो इसके साथ बहुत अच्छा खेल खेल सकते हैं, है ना। ये देखिए, अगर मुझे इसके साथ और भी दिखाना है तो मैं देखिए यहाँ पर एक पॉपलेट बना देती हूँ, ठीक है ना। इस तरह से ये आगे और हो सकता है, और यहाँ जूम करते जाएंगे तो और देखिए एक पार्ट जूम हो जाता है, जो भी बात आपको दिखानी वो साथ आ सकती है। आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये बोलूंगी कि जैसे मैंने ये बनाया, एक्सप्लोर करके बनाया है, आप लोग हर टूल को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि यहाँ पर इतना लंबा बताना मुश्किल होगा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर और ये किया, ये देखिए जूम हो रहा है। मैं ये दिखाना चाहूंगी कि कितने बने हुए हैं, उनको देखिए, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बने हुए हैं। ये देखिए, व्यू ऑल पे अभी जाऊंगी मैं, तो देखेंगे यहाँ पर। मैम व्यू ऑल से पहले आप क्विकली बता सकती हैं कि शेयर कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पर शेयर यहाँ दिया हुआ है, तो ऐड कोलैबोरेटर हो गया,
तो मैंने हम्म, इसको जैसे खोल दिया, ओपन कर दिया यहाँ ओके। पर, है ना? तो ये प्राइवेट है और हम्म, ये अब ओपन है। आपको मैं करती हूँ, अब यहाँ मैं आप बताएं अपना, क्या नाम लूं, क्या ईमेल डालना होगा ईमेल मैम? डालना होगा। नहीं, इट्स हाँ, ओके। या बट इस टैब को अगर आप ओपन कर देंगे एंड वो लिंक उस बच्चों के नेम्स उसमें लिख देंगे तो आप ये डायरेक्टली देखिए शेयर मैं कर बताऊँ, सकते ये हैं। देखिए ये कॉपी आ गया ना, ये हम्म, कॉपी आ गया ना, तो ये आपने ये कॉपी कर लिया, ठीक है ना? उसके ओके। बाद आप चले जाइए टीम्स पर, जहां भी जाना है आपने कॉपी कर हम्म, लिया, तो बस हो गया। और आप चैट अगर में डाल सकती हैं, आप चैट में डाल कई सकते हैं और उसके बच्चे। बाद बच्चे उसमें कोलैबोरेट करेंगे, है ना? परफेक्ट, परफेक्ट। या हाँ, और थैंक यू। दूसरी बात ये है कि ये देखिए यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर पे भी है, तो हम्म, आप जरूरी नहीं है हर काम बच्चों के लिए करें, अपने मजे के लिए भी करिए। मैं तो बहुत मजे करती हूँ, है ना? राइट। तो आप अपने मजे के लिए डिजाइनिंग करिए कुछ अपने कॉन्सेप्ट, तो आप अपनी क्लासरूम से निकल के दुनिया से जुड़ जाएंगी। कितने लोग पसंद करेंगे आपका काम फेसबुक पर कि अरे ये क्या बनाया है। और एक हम्म, छोटा सा कोई भी, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना के बारे में कुछ जानकारी देनी है, आप आराम से ऐसा बना सकते हो और शेयर कर सकते हैं फेसबुक पर। वेरी नाइस। बहुत मुझे अच्छा है। ये लगता है कि हम मतलब अपनी कक्षा से भी बाहर निकले, हम्म, दुनिया से जुड़े बिल्कुल, और टीचर बिल्कुल। से जुड़े, कोलैबोरेट करें। तो यहाँ व्यू ऑल में यहाँ पर अभी नहीं खुल रहा, अगर वो खोलेंगे ना तो हम्म, यहाँ पर ढेरों चीज मिलती है, ढेरों लोगों ने बना के अपने डाले हुए हैं। तो क्या आपको आइडियाज मिलेगा, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर खोलते जाइए, इतना सारा मिल जाएगा। तो ये एक मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो हम पॉपलेट से निकलते हैं, अब हम भूल भुलैया में घुस रहे हैं बहुत ज्यादा। एक है वर्कशीट। मैम अब मैं जा रही हूँ liveworksheet.com 3.org वाले में, ठीक है? या ये आप मैं शेयर कर शेयर कर सकते हैं। देती हूँ। ये यस। देखिए, ये मैंने एक वर्कशीट मैंने की है एंड सारे लोग इसको खेल सकते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन देने चाहिए क्योंकि इसका नंबर है 10। तो आप लोग खेल सकते हैं, कैसे खेल सकते हैं? देखिए ये मेरी पेंसिल आ गई इसमें, ये मैंने मैचिंग गेम करा है, ये छोटे बच्चों के लिए। तो दर्जी कौन है मुझे नहीं पता, तो मैं समझ लीजिए यहाँ पर जाती हूँ और ये मैंने ले लिया। तो यहाँ पर ना क्या होगा, ये ले लेगा इसको। ये सब खेल सकते हैं मैम, इसको आप शेयर कर दीजिए उनके साथ। या मैंने लाइव वर्कशीट वाला आपने जो लिंक भेजा है वो हाँ, मैंने चैट में ये शेयर कर चलता दिया। है, ये चलता है ऐसे, है ना? ओके। ये ऐसे इसके साथ इसको क्लिक करना होता है कनेक्ट कर अभी। सकते हैं। हाँ, हाँ, करने राइट। ये मैंने बनाया, ये अभी चल रहा था, जैसे ये पपीता हम्म, देखते हैं कैसे, थोड़ा-सा अभी। और या उसके बाद प्रोबेबली ना आप लाइव पे है ना तो वो हाँ, डबल शायद वो होता ले होगा। नहीं रहा। हाँ, हाँ, ये हो सकता है, ये बट सब जो लोग कर लिंक पेस्ट सकते की है, जो लिंक मैंने हैं। हाँ, अभी आपको समझ उषा लीजिए मैम ये की है, लिंक है। या ये देखिए ये आ गया ना, सीढ़ी बन गई ना ये आ गई, है ना? समझ लीजिए ये पपीता मैंने किया और ये यहाँ पर अभी नहीं आ रहा, ये सबका होगा, घर पे करेंगे ना तो हो जाएगा। जैसे आपने सीढ़ी का दिखाया तो सीढ़ी का, है ना? इट अब विल समझ हैपन। लीजिए या अब ये समझ लेते हैं चलो कि मुझे और नहीं आता, कई बच्चे होते हैं क्लास में नहीं आता, ठीक है? और उन्होंने फिनिश कर दिया इसको। देखिए आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा, फिनिश किया और वो लोग चेक माय आंसर, आप देखेंगे ये आपको नंबर आ गए वेरी 10 में से नाइस। 3 क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन नहीं बनाए, 4 बनाए हैं, है ना? हाँ, तो आप 5 बनाएँगे, हर एक का 2-2 नंबर होगा और इस तरह से नंबर मिल जाएँगे। तो ये आपको अपने आप में, ये तो मैंने वर्कशीट आज ही बनाई है टेस्टिंग करने के लिए, है ना? और सारी चीज़ें ना यहाँ लिखी हुई हैं, हर टूल वाले में लिखा हुआ है। तो वहीं से पढ़-पढ़ के मैंने कोशिश की और ये काम हो गया आज, ठीक है? और भी एक अच्छी चीज़ है जो यहाँ लगी मुझे, ये ऐड टू माय वर्कबुक्स। तो यहाँ पर ना मैंने वर्कबुक भी एक बना ली, ठीक है? ये हिंदी, अब मैंने सोचो यहाँ पर मैंने ग्रामर में इसको ऐड के लिए सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो ऐड वर्कशीट हो गया, तो ये अब ऐड हो गई। अब मैं अब जाऊंगी अपने उसमें और वर्कशीट्स में देखूंगी मेरी वर्कशीट्स कौन कौन सी, ये 2 मैंने सोची, तो ये वाली देखिए मेरी वर्कशीट्स है। और अगर मैं वर्कबुक खोलूंगी तो इसमें सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे जो मैंने यहाँ पर सेव कर रखे हैं। देखिए दिख रहा है ना ये, है ना? और इसमें बने बनाए भी होते हैं, ये भी अच्छी बात है। ये देखिए ये बने बनाए हैं इसमें। मैम मैंने वहां पर आपके साथ हिंदी का और एक शेयर किया हुआ है ना, जो बना बनाया लाइव वर्कशीट्स, देखिए नीचे सैंपल्स में, उसमें जाइए, ये लाइव देखिए। वर्कशीट सैंपल मैम। हाँ हाँ वो ओके। देखिए ये देखिए कितने सारे इसमें, तो ये खेल भी सकते हैं अभी, दे कैन डू। तो चलिए हम लोग एक 2 मिनट में वो लिंक पेस्ट करती हूँ
एंड ये देखिए हम मैंने डाला हुआ है, कोई भी कर ले ये लोग, है ना, जैसे मैंने डाला, ये देख ऑडियंस ले। को 2 मिनट देते हैं टू क्लिक दे ऑन दैट दीजिए। लिंक, एंड अगर हाँ, आप वहां पे देख सकती हैं तो वील सी कि कैसे कर सकते हैं वो लोग। ये लोग उनके बाद बोल देंगे फिनिश, है ना, फिनिश करते ही इनके नंबर आ जाएंगे इनके पास। ओके और ये ओके। ये ना मैंने नहीं बनाए, बहुत लोगों ने बनाए, तो मैं हमेशा ये खोजती हूँ कि अगर किसने बनाया है और शेयर किया यूज करने के लिए, व्हाई डोंट वी यूज। तो लास्ट में जाके फिनिश कर दीजिए और देखिए आपके नंबर आ जाएंगे। ये मत सोचिए मुझे कितने नंबर आएंगे, ये मत सोचिए। है ना? या हाँ, अब देखिए ये वाला मैं देख रही, यहाँ पर डाल रही हूँ, ये स्वर्ण और ये स्वर वर्ण का अभ्यास में दिया हुआ है, ये देखिए ये खुल गया मेरे सामने, है ना। अब इनको क्या करना है, अ आ ई लगानी है, अगर क्या लगाना, ये देखिए इसके साथ जोड़ना है, स्वर पहचानो, देखो ये देखो कितना इंटरेक्टिव है। आप इसमें या पूरा वीडियो मतलब समझ एक्सप्लेनेशन का वीडियो है। हाँ, हाँ, और उसके ओके बाद ये खेल सकते हैं इसको, ये देखिए ना ऐसे करके ना, ऐसे तो करके, ये देखो, हाँ, ऐसे 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 जा सकता है ये। तो ये मैं कहती हूँ रेडीमेड पड़ा है, तो क्यों ना यूज करो। एब्सोल्युटली या शेयर शेयर विद द चिल्ड्रन, आप पहले खुद खेल के देखो, अगर अच्छा लगे तो आप बल्ले बल्ले हो जाइए। है ना, बढ़िया हो जाएगा, है ना। बिल्कुल तो ये वर्कशीट है, और आप बिल्कुल वहां जाएंगे, वहां आराम से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार चलते हैं काहूट पे। मैं तो आपको टूल्स बता रही हूँ, करना आपको है, बच्चों को बोल दो। काहूट पे तो मेरे बच्चों ने बनाया था, ये मैंने बनाया था। तो इसको देखते हैं मैंने क्या बनाया। ये खेल सकते हैं सब, काहूट वाला ये खेल सकते हैं, देखिए सब लोग कैसे खेलते हैं, श्योर। कैसी लगती है, देखिए इनको बताएं। ये लिंक है इसका, ये लोग खेल सकते हैं। सो देखिए उषा प्ले, मैम, प्ले लिखा हुआ है, प्ले, है उषा ना। मैम एक हाँ जी, क्वेश्चन है क्विकली वहां पे बताएं। कि जब हम लोग वो लाइव वर्कशीट पे जाते हैं तो हाँ, उसमें हमने जैसे एक वर्कशीट बनाई तो हम बाकी टीचर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं वो वर्कशीट। हाँ, ईमेल है वहां पर, सब कुछ दिया हुआ ओके है, वो देखिए, हाँ सब कुछ है वहां पर। सो द मैं यही आइडिया इज बोलूंगी। कि उषा मैम ने जो जो ट्राई किया है और जो सबसे बेस्ट वर्क हुआ है आई थिंक वो हमारे साथ शेयर कर रही है, एंड आप लोग इस प्लेटफॉर्म्स पे जाइए, जाए, हाँ, एक्सप्लोर एक्सप्लोर करिए एंड ट्राई टू क्लिक डिफरेंट थिंग्स जहां से आपको खुद आइडिया आएगा कि क्या आपके क्लास में वर्क हो रहा है। तो मैं कहूट का लिंक पेस्ट करती हूँ, जी जी जी। तो लेट यहाँ अस पर सी मैं थोड़ा आ गई हूँ, कहूट खेलते हैं। प्ले पे आ गई हूँ, है ना। असाइन कर ले फॉर सेल्फ पे, असाइन पे चले जाएंगे, और ये हो जाएगा। सुनो, हाँ, इसका कॉपी यूआरएल भी कर सकते हैं। ये यूआरएल दिखा रहा है, कॉपी यूआरएल कर लें, और उसके बाद मैम आपके पास आया कॉपी यूआरएल जैसा कुछ? गेम का पिन भी आया, अगर उनको क्वेश्चन पूछना है पिन का, तो 0684910107, 0684910107, ये काहूट का लिंक है, इस पर आप खेल सकते हैं। कुछ दिख रहा है उनको? Reshma, I'm sorry, you're muted. Oh, I'm so sorry. So thank you. So the link जो हमने अभी पेस्ट की है, if हाँ, you click on that link, actually मैं हाँ, और उषा मैम ये गेम खेल चुके हैं, तो मुझे हाँ। दिखा रहा है कि you have played the game, but विशाल सर if ओह! you can try, वो अच्छा, आप लिंक अच्छा। पे क्लिक करिए जो लोग हमें देख हाँ, रहे हैं, एंड हाँ, यू हाँ, कैन हाँ। प्ले दैट गेम, हिंदी क्विज करके गेम है, बहुत फन गेम है। मैंने खेली उषा मैम के साथ वो कपल ऑफ उसमें डेज मैंने पहले। वीडियो डाल दिया था, इमेज डाल दिया था, ऐसे हम लोग क्लास में भी कर सकते हैं, और मैम ज़्यादा नंबर बहुत ऑफ बच बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि काश अच्छा, हमारी टीचर ऐसी होती। ओहो! थैंक यू सो मच। सो मैंने डाल दिया, अब लेट्स सी अगर आप जाके देख सकती हैं कौन-कौन खेल रहा है, तो आई एम श्योर मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर मैं शेयर ओके। नहीं, हाँ मैं नहीं देख पा रही हूँ, वो बच्चे वो लोग खेलेंगे, फिर वो अपने आप देखेंगे कितना आया, क्या श्योर, आया। सो जो लोग खेल चुके हैं या फिर आपने लिंक क्लिक की है, जस्ट हमें चैट में बताइए कि इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट,
एंड अगर आपने पास कर लिया है तो आपका स्कोर क्या है. तो जस्ट फॉर फन सो दैट वी नो कि इट इज वर्किंग. सो बहुत लोगों ने खेलना शुरू किया है प्रोबेबली. अच्छा, गुड 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 गुड. अच्छा, इंटरेस्टिंग very और nice. फटाफट हो जाता है. और क्लास में बच्चे बनाते हैं, मैं सही बता रही हूँ. मैंने नहीं, ये तो मैंने खाली इनके लिए बनाया है. आपको दिखाना था ना उस दिन, तो मैंने बनाया था, है ना. तो बच्चे बनाते थे मेरी क्लास में. पूरा ग्रामर, पूरा सब कुछ इसमें चला गया, वर्ड वॉल में, इसमें, और साथ में क्विज़ेस में. बहुत बहुत एंजॉयफुल रहा था. हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस हमने वहाँ फटाफट कर लिया था. बच्चे तो इतना ज्यादा पढ़ पढ़ के, मैम हम करेंगे हम करेंगे. मैं यही चाहती थी, क्लास में खूब मजे आए बच्चों को. मैम, लोगों ने खेलना शुरू कर दिया है. शिल्पा मैडम अच्छा. को 1852 पॉइंट्स मिल गए. सबसे अरे आगे वाह, है वो. अरे वाह वाह वेरी वाह, नाइस. गुड गुड. तो एंड दीप्ति मैडम बहुत ही हिंदी में आई थिंक बहुत प्रोफिशिएंट है. दीप्ति मैडम को 2529 पॉइंट्स मिले हैं. अरे वाह. वेरी नाइस. और बच्चे बड़े खुश होते हैं, मैम हमें इतने नंबर मिल रहे हैं, हमें इतने नंबर मिल रहे हैं. राइट. तो वो सैंपल क्विज है जो उषा मैम ने बनाई. एंड एग्जैक्टली वही वो कहना चाहती हैं कि अगर आप हिंदी में डायरेक्टली उस क्विज पे नहीं टाइप कर सकते तो आप हमेशा गूगल डॉक्स में अपना पूरा टेक्स्ट रेडी रखिए. हाँ, करेक्शंस कर लीजिए गूगल ट्रांसलेटरी पे. मैंने एंड वहीं से किया है. मैंने सारा वहीं से किया है, ठीक है ना. अब वंडरफुल हम, वंडरफुल. हाँ, अब हम चलते हैं वर्ल्ड वॉर नेट माई एक्टिविटीज पर. देखिए मेरा पैडलेट से कितना आसान हो गया मैम मुझे, है ना. ये पैडलेट में मैंने सारे लिंक यहाँ बना लिए. अब जैसे क्लिक करती हूँ मैं पहुंच जाती हूँ. इनको भी क्लास में ऐसे ही करना है. जो भी चीजें अपलोड करके रख लो, है ना, तो कोई हौच पौच नहीं होता, कहाँ खोजे कहाँ खोजे. तो ये देखिए वर्ल्ड वॉर माई एक्टिविटीज में हम चले जाते हैं. तो यहाँ पर इनको ये दिख जाएगा, मैंने आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, इन सब पे बनाया है, ठीक है ना. अब ऊ की मात्रा का मैंने शायद आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं. नहीं तो मैम यहाँ से आप ये ले सकते हैं, इसमें से ये शेयर वाला ले लीजिए. हाँ, यहाँ से शेयर वाला लेंगे ना तो ये गेट लिंक आ जाता है. और उसका ये लिंक जो है आपने कॉपी कर लिया और जाके आपने उसको वहां डाल दिया. मैंने दिया हुआ है शायद आपको रिसोर्स वाला. ये वही है. जस्ट क्विकली चेक. वर्ड वॉल राइट. हाँ, वर्ड वॉल का ऑल ओके. डॉट नेट रिसोर्स वाला 40972332 है ना. ये वहां लगा दीजिए, सब खेलेंगे. Okay, let's check one more resource that Usha ma'am is sharing with us. So this is called Word Wall. So काफी लोगों ने खेला होगा. जिन्होंने बिल्कुल नहीं खेला है, please give it a try. Word Wall में बहुत सारी अलग-अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं. So मैंने लिंक पेस्ट कर दी है. Yeah. हाँ, मैंने लिंक पेस्ट कर दी है. So please go ahead, click on that link and try to see कि आपको कैसे Word Wall पे आप क्या देख सकते हैं. बहुत आसान गेम है, छोटे बच्चों के लिए तो बड़ी मजेदार है, जिसमें कि आप मात्राएं सिखा रही हैं उनके लिए. और बहुत सी बनी हुई हैं, फिर मैं बोलूंगी बहुत लोगों ने शेयर किया हुआ है, वहां से भी ले लीजिए और आप अपने उस लिंक को यूज कर सकते. तो बनी हुए रिसोर्सेज. सुनीता मैम को एक क्वेश्चन पूछना है. वो कह रही है कि ये वाले जो एक्टिविटीज हैं वो क्या आप सिर्फ वर्चुअल क्लास में ले सकती हैं या क्लास में बच्चे होंगे तब, तो क्योंकि अभी तो सब सिचुएशन अलग है. नहीं, वर्चुअल में जब आप शेयर कर रही है ना, ये सारे तो देखिए कॉपी लिंक है ना. ये तो लिंक शेयर करना है. अगर आप वर्चुअल क्लास में हैं तो अच्छी बात है, वहां पर शेयर कर लीजिए. अगर जब स्कूल खुलेगा ये आपके पास है ना, इन बच्चों के ईमेल लेके उनको वहां पर आप ये भेज दीजिए. आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें डाल दीजिए और ये बच्चे घर में खेल सकते हैं फिर, क्योंकि ये तो ऑनलाइन ही है ना. ये तो राइट. तो ये कहीं पे भी खेल सकते हैं. तो सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, किसी भी टाइप का लेसन हो, अगर बाद में आप व्हाट्सएप पे सीधा ये लिंक कॉपी करके डाल दीजिए, तो बच्चे तो लिंक में, जैसे हमने कहाँ डाला, हमने यहाँ चार्ट पे डाला, ले लिया आपने, तो बच्चे इस क्लास में सीख लिए कॉन्सेप्ट, घर आके गेम खेल लिए. चाहे आपके स्कूल में ऑनलाइन उस समय नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास ऑनलाइन उपलब्ध है. ये अब मेरा रिसोर्स बन गया. ये नहीं जाने वाला कहीं. अगर मैं डिलीट ना करूं तो मेरे पास, ये मैंने जब बनाया था, ये 2-3 महीने शायद पहले बनाया, ये वाला ऊ वाला, या जब भी, तो क्या है मेरे पास, मैं इसको डिलीट, ये भी लिमिटेड अगर है तो आप वो मिटाइए मत, मतलब कि उसी पर आगे चलते रहिए. और जो आपने कॉन्सेप्ट करा दिया उसको दिखा दीजिए, शेयर कर लीजिए. इतने बच्चे खेल लिए, चलो जी वापस आ जाओ, फिर नया कुछ बना लो,
ऐसा। लेकिन अगर ये पेड़ ले लेते हैं तो बस फिर तो मैम बहुत कुछ है। ये जिन लोग को होता है, जैसे मैंने नहीं लिया हुआ पेड़, तो मैं उसी में फिर चेंज करती रहती हूँ। और अगर किसी को ज्यादा काम है और रिसोर्स अपना बचाए रखना चाहते हैं, व्हाई नॉट टेक अ पेड वन, तो ये आपका हमेशा के लिए रहेगा। और मुझे ठीक है लगता ना? है ये एक चांस भी मिलता है अदर टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। सो और हर एक टीचर हाँ अगर अलग टाइप की एक्टिविटी बनाए तो हाँ, बहुत सबके ज्यादा। पास 5-5 एक्टिविटीज। एक स्कूल में एटलीस्ट 5 हिंदी टीचर तो होती हैं, कोई भी 5 बिल्कुल सब्जेक्ट टीचर। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, आपके पास अलग अलग जैसे टॉपिक्स पे। 25 एंड 25 हाँ एक्टिविटीज रेडी हो गई। और हाँ, इसीलिए कोलैबोरेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल स्कूल में, कि सब लोग वही काम करके अपनी एनर्जी ना वेस्ट करे। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा, दैट इज अ वेरी गुड टूल। तो इस तरह से मैंने आपको जितना भी दिखाया वो यही था। आज की जो मेरा पीपीटी थी, काहूट, वर्ड वॉल, पैडलेट, गूगल डॉक, सब मैंने जितना मुझे आता था मैंने बता दिया, ताकि आप लोग को मतलब जितना हो सके मैं जो शेयर कर सकती थी वो मैंने कर लिया। वेरी नाइस। उषा मैम, बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने उस दिन वो देखा आपके साथ। आप प्लीज अपना स्टोरी टेलिंग का एक छोटा सा क्लिप दिखा सकती हैं, कि जी जी जी। आप हिंदी लैंग्वेज को इतना फन कैसे बनाती हैं बच्चों के साथ। तो उषा मैम मैं इज अ वेरी वेरी वंडरफुल स्टोरी टेलर। तो जो चीज आप चैप्टर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो उसको स्टोरी में कन्वर्ट करके कैसे बच्चों को सिखाती हैं। मैंने ना अपने YouTube चैनल में मैम ऐसा है कि मैंने चैनल पे अपने स्टोरी भी डाली है एनसीईआरटी की, वो दिखा दूं? कोई आपको जो ठीक लगे वो आप दिखाइए। हाँ, वो बहुत पसंद किया बच्चों ने, कांच की चूड़ियां करके। मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। इसमें ये जो है पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें स्टोरी मेरे दिख रहा है ना ये वाला आपको? यस यस, दिख रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं दिखाती हूँ आपको। इसमें बहुत सारी स्टोरीज मिलेंगी आपको। तो स्टोरी टेलिंग अगर देखनी है तो यहाँ पर आ सकते हैं, और मैं दिखाऊंगी ताकि एनसीईआरटी जो लोग फॉलो करें उनको मिल जाए। कहाँ है? अच्छा चलिए, एक हाँ ये आ गया। लाख की चूड़ियां दिखाती हूँ। ये इनका क्लास 8 का लेसन है। ओके। बस एक रिक्वेस्ट है मैम, आप हाँ अपना बस जी। हेडफोन निकाल लीजिए अच्छा कंप्यूटर के जैक में से बस। अच्छा, क्यों, क्या हुआ? तो फिर वो स्पीकर आपको, क्योंकि हमें ओके अदरवाइज ओके। आवाज नहीं आएगी। हाँ, आप प्ले कर दीजिए बस। हमें आवाज नहीं आ रही है उषा मैम, बट आई थिंक अगर मैं आपकी यूट्यूब की लिंक पेस्ट कर दूंगी तो हमारे ऑडियंस वो जाके देख सकते हैं। तो दोज हु आर वेटिंग, मैं उषा मैम के यूट्यूब लिंक, जस्ट गो सर्च फॉर हर ऑन यूट्यूब, एंड शी हैज ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग लेसन्स। Usha ma'am, sorry, we cannot hear you. Uh, ओ आप म्यूटेड है, सॉरी। आपका माइक कनेक्टेड नहीं है, ऐसे मुझे एरर आ रहा है। नहीं, हमें आवाज नहीं आ रही है आपकी, सॉरी। अभी सब ठीक चल रहा था। यस, सॉरी, आपको मैंने कहा कि आप अनप्लग कर दीजिए। नहीं, आई थिंक उषा मैम आपका ऑडियो चेक है, वो आप फिर से कनेक्ट कीजिए, वो हो जाएगा। गिव इट सम टाइम। Yeah, that's okay. Till Usha ma'am is getting back to us, क्योंकि we want to hear her lively. Please feel free to type your questions in the chat. Maybe Usha ma'am, आप अपना YouTube बंद कर दीजिए अभी, and let's try it that way. नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं है, इट्स हार्डवेयर इशू नाउ। ओके, पॉइंट अगर
कनेक्टेड नहीं है. It's a hardware issue. I think microphone is the only source through which she is able to connect. Yeah. So I don't inbuilt microphone. अब ठीक है, आया. हो गया, Yeah. आया ना, ठीक है. यहाँ Okay. से, हाँ, Yes. यहाँ से अनम्यूट करना है. Okay. चलिए. Sorry. Yeah, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट किया, हाँ, but आप you can continue. Yes. ठीक है, तो YouTube खुद ही देख लेंगे. आपने लिंक उषा Yeah. छाबड़ा चैनल टाइप करेंगे ना, तो वहां पर मिल Mhm. जाएगा. और बहुत से अच्छे हैं. और मैं आपको बता दूं ऐसे, हाँ, तो कहना क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा, ठीक फरमाया आपने. हाँ हाँ, बिल्कुल. क्या चाहते हैं आप कि मैं बस बोलती ही रहूं? नहीं नहीं, आज के लिए तो बस इतना ही. कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं. वंडरफुल. तो यही मैं दिखाना चाहती थी ऑडियंस को कि हिंदी लैंग्वेज कैसे इंटरेस्टिंग करे. एग्जैक्टली. तो देखिए, मैं एक बात बताऊंगी, टूल तो हेल्पर हैं आपके, मेन तो आप हैं. तो मेरी क्लास में तो मैं खूब कहानियां और कविता, बच्चों को पता होता था कि मैम आपके पास कविताओं का भंडार है. तो हमेशा मैं क्लास ओपन करते समय पहले तो पोयम पढ़ती थी. कोई कहानी सबको भी पता है, तो कहानी तो पोयम कहानी इस तरह चल. उसके बाद ही हुआ ये कि जी मैम अब आप सुना सकते हो अपनी कहानी, जो भी पढ़ाना है. पहले कहानी कविता होगी. अच्छा, 15 मिनट पहले आ जाते हैं वो बच्चे मेरी क्लास पे. अब तो छोड़ दिया स्कूल मैंने, अदरवाइज वो पहले जुड़ते थे और उसके बाद बोलते मैम पहले कविता हो जाए. तो ढेरों बातें होती थी. तो क्या वो हिंदी के साथ चिपक, मैम प्लीज वी वेट फॉर यू. तो मेनी चिल्ड्रन मिस मी, आई नो, लेकिन आगे और बच्चे जुड़ रहे हैं और शायद ये और अच्छाई के लिए ही शायद स्कूल छोड़ा, मैं ये कह सकती हूँ. वंडरफुल. मैं आप मिल सकूं. स्कूल के साथ ना ये सब हो नहीं पा रहा था और मुझे इच्छा थी कि मैं आज जिस तरह से लोगों के साथ मिल पा रही हूँ, इसके लिए देखिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, तब जाके यहाँ तक पहुंचते हैं, है ना. अगर ये स्कूल के साथ ना नहीं हो पा रहा था. स्कूल बहुत अच्छा, बच्चे प्यारे, सब कुछ अच्छा, लेकिन मुझे फिर ये था कि आप सब तक पहुंचूं, विश्व तक पहुंचूं, और वो अब कर पा रही हूँ. तो अच्छा लगा मुझे कि आपने मुझे यह मौका दिया. और कुछ प्रश्न अगर आए हैं तो बताएं. यस, सुनीता मैडम पूछ रही हैं कि आपने जितने टूल्स दिखाए सब, वो हमें अगर रिकॉर्डेड लेसन करना है बच्चों के लिए, तो आपके जैसे स्टोरी टेलिंग और ये एक्टिविटी, ये हम कैसे बच्चों तक पहुंचा सकते हैं? अब वो मैंने आपको कहा था ना कि मैं तो YouTube का बहुत बड़ा सहारा लेती हूँ. आप कोई भी चीज, जैसे अब मैंने दिखाई, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जैसे, है ना, समझ लीजिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है. ऐसे ही हम भी अपना जूम खोल कर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. ये एक और सेशन लूंगी. मेरे तो YouTube पूरा जूम पे बना है. अभी इन दिनों तो सारा जूम पे बन रहा है, क्योंकि पहले मेरा बेटा, हम लोग कैमरे से करते हैं. मैंने कहा यार अपना ना, मैंने सारा सेटअप बढ़िया कर लिया है. मैं आपको सच बता रही हूँ, क्योंकि मैं अब एक प्रोफेशनल लेवल पे हूँ. तो मेरे घर में लाइटिंग है, मेरा माइक्रोफोन है, सब कुछ है, और साथ में मेरा कैमरा बहुत जबरदस्त है, आप देख सकते हैं अच्छी. तो क्या है, मैंने सेटअप मेरे हिसाब से, मेरी इमेज है और सारा सामान यहाँ होता है. तो मैं पूरा काम तरीके से करती हूँ. अब यहीं पर मैं, आप अगर देखेंगे, रोज मैं एक वीडियो डालती हूँ. वो कैसे बनता है, जूम खोलो, सामने बैठ जाओ और बोल दो, और बाद में कैनवा उठाओ, कैनवा में अपना वो बना लो अपना पोस्टर, और वो जो आपका वो लेता है ना सबसे पहले कि कौन सा आपको यूट्यूब के सामने लिखना है, वो कैनवा पे बना, चिपकाया, हो गया. मैम आपने इतना सिंपल करके बता दिया है कि बस यहाँ से बोला, बस आपके पास जो शैली है, मैं कहूंगी, बात करने की या फिर एक्सप्रेस करने की, दैट इज व्हाट आई थिंक इज मेकिंग दिस लैंग्वेज सो इंटरेस्टिंग. क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा होने के बाद भी लोगों को हिंदी सबसे कठिन लगती है और समझ में नहीं आता, क्योंकि शब्द अलग अलग होते हैं, उन्होंने सीखा, उनको बस याद करना पता है. मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पर, थोड़ा सा मैं ये टूल्स के साथ कनेक्टेड, लेकिन मुझे लगता है देखिए सब मेरे को फॉलो कर. थैंक यू सो मच सुनीता जी, थैंक यू सो मच. अब मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि टूल्स में बहुत रेयर, लास्ट में रिवीजन है, कुछ करना है तब, लेकिन क्लास में मस्ती करो पहले. क्लास की मस्ती जो है वो सबसे टॉप मोस्ट है. तो देखिए मैं आपको पढ़ के सुना. अब राजा अगर बोल रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, स्थितियों के मुताबिक तुम्हें पूरी ईमानदारी से इनका घड़ा लौटाना चाहिए. इतना सुनकर गरीब दादी माँ रोने लगी. वे राजमहल से बाहर आ गई. उसी रास्ते पर एक तेजोमयी बालक
जिसका नाम राम था, उसने दादी को रोते हुए देखा तो पूछा, दादी माँ आप क्यों रो रहे हैं? दादी माँ ने सब कुछ बताया। राम को उनके लिए बहुत बुरा लगा और उसे बहुत गुस्सा भी आया। अच्छा, तो ये बात है, ये तो सीधे सीधे अन्याय है। महाराज को अपने इस फैसले पर एक बार पुनः विचार करना होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो राजा है, बस मैं अन्याय सहन नहीं करूंगा। राम, क्या बेवकूफी है, तो मुसीबत में पड़ सकते हो। और राजा को इस बात का जल्दी ही पता लग गया। अच्छा, उसकी ये हिम्मत! मैं आदेश देता हूं कि राम को शीघ्र, अतिशीघ्र यहाँ लाया जाए। तो मैम ये देखेंगे आप कि मैंने यहाँ पर अचानक से, मैंने ये प्रिपरेशन नहीं की थी, मैंने तो टूल्स के लिए प्रिपरेशन थी। आपने बताया तो मेरी मेज पर बहुत कुछ होता है सामान, तो मैंने फटाफट के निकाला, पढ़ा भी नहीं हुआ था मेरा पहले ये वाला पेज। और यहाँ पर जैसे मैं देखती चली गई, कैरेक्टर बनती गई। आपने देखा होगा अभी एक राजा, एक बूढ़ी औरत, फिर नरेटर। तो मैं स्टोरी टेलिंग के ट्रेनिंग्स भी लेती हूँ, मैं क्रिएटिव राइटिंग की लेती हूँ। अभी पागल हुए पड़े हैं बच्चे। आई एम श्योर जिस तरीके से मतलब मेरे लिए भी हिंदी एक टाइम था जब मुझे गणित अच्छा लगने लगा था, लेकिन मेरे से हिंदी नहीं होती थी क्योंकि प्रॉबली मैंने ऐसे सीखा नहीं था। सो टीचर मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर लाइफ। एंड अगर आप बच्चों को एंगेजिंग सेशंस, यू वांट देम टू बी क्रिएटर, जैसे उषा मैम ने कहा, यू आर गिविंग देम डिफरेंट आइडियाज ऑफ हाउ टू यूज इट, एंड प्लस अपने टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करे। और उषा मैम जैसी अगर लीडर हो गाइड करने के लिए, तो आई एम श्योर इट विल बी एन वंडरफुल, और एनी सब्जेक्ट कैन बी मेड लाइवली, आई विल से। एंड हिंदी का हमने तो बिल्कुल देखा। तो those who have joined today, I am really thankful to all of you. बहुत सारे मैम चैट में आपको थैंक यू आ रहे हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स पूछे जा रहे हैं। तो मैंने आपकी सारी लिंक्स शेयर कर दी है। एंड मेरी वेबसाइट है ushaChabra.com, यूट्यूब चैनल उषा छाबड़ा, और मेरा अब मैंने जो अपना सेंटर खोला है उसका नाम है उषा छाबड़ा इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव एंगेजमेंट। उसमें मैं सिर्फ हिंदी नहीं मैम, मैं इंग्लिश भी करा रही हूँ। इंग्लिश की स्पोकन लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, उस पर भी ध्यान जा रहा है, क्रिएटिव राइटिंग पे, क्योंकि मैं इंग्लिश MA भी हूँ और MA MPhil हिंदी में भी किया है। एंड आई एम बेसिकली BSc ऑनर्स with zoology. Wow. So that's why I know all the subjects, and that's why I feel कि मेरे को tools वगैरह use करने में मतलब handy होते हैं, and I learn from different languages what people are using, and then I incorporate it to हिंदी। और इस वजह से मुझे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में कोई मुसीबत नहीं लगती। Every subject I can teach। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैम सेड which subject, which class? मैंने कहा मैम any subject, any class। I didn't know at that time, I was too young at that time, but still I feel today also I can teach any subject, I don't mind, because that is a skill which you have. At this moment I told you I am teaching class nursery, not nursery 1, those class 1 children who don't speak Hindi, they don't know Hindi, and I am teaching even the adult, so you can see my scale. And if I am able to teach class 1 child, that is the best teacher I feel, who is able to scale herself to adult as well as come down to the level of 1, and they enjoy my classes. The child is there from US and he enjoys this, ma'am, please। And yes, I would like to say something. If you're doing online classes, please you can divide your class. How? बिगिनिंग में जैसे मैंने कविता निकाली, कोई कविता कर लो, तो 40 मिनट्स है ना, बच्चे थक जाते हैं भैया। आप टूल्स की तरह यूज करोगे, आप खुद यूज हो जाओ पहले, है ना। तो 5 मिनट 2-4 मिनट बच्चों से बात। और बच्चे कैसे, मैंने एक और काम शुरू किया था, आप लोग बेटा, बच्चे लोग, मैं आपको नहीं जानती, नया सेशन है, तो आप लोग एवरी डे ना 2-2 बच्चा जो है, रोल नंबर मेरे पास है, एवरी 2 रोल नंबर विल टेल अबाउट योर थिंग, आपको क्या पसंद है। तो मैम मैं ये हूँ, मुझे ये पसंद है, ठीक है, ये हूँ, अच्छा है। हमने स्पीकिंग स्किल सिखा दी, बच्चे को पता भी नहीं लगा, वो प्रिपेयर होके आ रहा है बड़ा मस्त होके, है ना। उसको क्या पता हम स्पीकिंग स्किल भी टेस्ट कर पा रहे हैं इससे, है ना, अनजाने में। और हम बता भी लगा पा, बच्चे इतनी ड्राइंग सिखाते, जुड़ाव जरूरी है टीचर के साथ। नंबर 1, दे हैव टू बी एसोसिएटेड विद यू। फर्स्ट आस्क देम हु यू आर।
I am not here as a Hindi teacher or any subject teacher. I am here as a person to know you. I am interested in you. First, show your interest towards the person. I respect you. Don't treat them as small children. Equal. And they know better. I am telling you, I never take them to be small. I say, beta tum जानते ज़्यादा हो, मुझे सिखाओगे. And all the teachers know it. Children are masters in their this technology में. ऐसा उन्होंने videos बनाए मैम lesson के ऊपर, हम पागल हो गए. मैंने कहा तुमने किया कैसे? So give the charge to them. और फिर जैसे आपने थोड़ी देर के लिए वो दिखाया, फिर कुछ एक वीडियो रख लो, वीडियो दिखाओ लेसन का, है ना, फिर थोड़ी सी बातचीत, फिर उसके बाद आपने जो अपना वाक्य बनाओ, शब्दार्थ, वो तो कराने ही है, लेकिन मजे भी करा दो, पहेलियां कुछ दिखा दो, कभी कुछ मुहावरे दिखाओ, कुछ भी, मतलब गो फॉर इंटरेस्टिंग थिंग्स प्लीज. हिंदी को बोरिंग ना करें. बिल्कुल. So thank you so much. I have shared the feedback link for this session. And thank you so much, Usha ma'am, for all your inputs and guidance. And I'm sure a lot of teachers want to connect with you offline after this session. So please request you to guide them. We need teachers like you. And thank you so much. Vishal sir, you want to end? Yeah. We are very thankful to Usha ma'am for spending her valuable time with us. आज का सेशन जैसे भी प्लान हुआ, मीन्स वॉट एवर द प्लान ऑफ द टुडे सेशन में भी हाउ टू टीच लैंग्वेज यूजिंग टेक्नोलॉजी, उससे बढ़कर भी आज हमने सीखा है कि एक्चुअली पढ़ाते कैसे हैं, सिखाते कैसे हैं. सो दिस सेशन ऑफ योर्स is a multifaceted session. We have learned many things from you, ma'am, today. And सबसे पहले तो आपके अंदर जो शिक्षक है, आपके अंदर जो गुरु है, उसको शत वंदन मैम. आपने बहुत कुछ सिखाया आपने. मैं बताऊं, गुरु नहीं है वो बच्चा है. जब तक हम अपने आप को बच्चा रखेंगे ना, तो हम इंक्विजिटिव होते हैं. हम गुरु नहीं है उसके अंदर, मेरे अंदर बच्चा है. I just want to learn more. Exactly, I can see this energy. It's over 60 weeks and the energy is still intact. And yes, that child is there. It should be there with you, within you. बट मैम बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है आपने. थोड़े से समय में आपने ज्यादा कुछ ज्ञान बांट दिया हमको. नहीं सिर्फ टूल कैसे यूज करना है, अपने सब्जेक्ट में कैसे टूल यूज करना है, उससे अलावा पढ़ाते कैसे हैं, कैसे ऑनलाइन लेक्चर को कैसे शेड्यूल करना है, आपने बड़े अच्छे से, बड़े आसानी से, सरलता से आपने समझा दिया. So once again, thank you very much, ma'am, for coming up with GG AP sessions. And आपने अपना valuable time और expertise share किया है. I am sure, Reshma, we would wish to have more sessions with Usha ma'am with some different topics, something different. आज हिंदी ले आए तो कल इंग्लिश लेंगे. Yes, you can have so much. इंग्लिश में तो भरा हुआ है इतना सामान, हिंदी में तो बहुत लिमिटेड हो जाता है, मैं ये कहूंगी. तो मैं ये कहूंगी, रेशमा जी, विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और जितने भी यहाँ पर माननीय सारे टीचर्स, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं. और अब तो मैं स्कूल से बाहर हूँ, कहने को, भाषण देने के लिए बहुत कुछ होता है. मैं मानती हूँ टीचर्स बोल रहे होंगे, बट बिलीव मी, व्हेन आई वाज इन द स्कूल आई हैड डन ऑल दिस. कोई मेरा यहाँ भाषण, बल्कि अब मेरा ये यूज कम हो रहा है, क्योंकि अब 1-to-1 हो गया है ना. बच्चे तो वैसा एंथू और ऐसी मजेदार वो चीज नहीं होती थी जो क्लास में 40 बच्चे लगे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, मैम फर्स्ट सेकंड, है ना. वो एक चीज जो है, जो अभी नहीं हो रही मेरे साथ. अभी 1-to-1 मेरे सेशन ज्यादा चलते हैं. लेकिन मैं ये बोलूंगी कि जितने भी यहाँ टीचर्स बैठे हैं, जरूर बहुत मेहनत कर रहे हैं. जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसके बावजूद यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, ये एक और बड़ी काम है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत वर्कलोड है. ऑनलाइन teaching has become very difficult, and hats off to them who are really teaching it so well and still want to learn. So आप सबके लिए बहुत बहुत नमन कहूंगी. और सर विशाल जी और रेशमा जी, वाकई आपने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया, मुझे अब शांति, मैंने पहले कहा था, मैं बहुत डरी हुई हूँ. आपको बिलीव, या ये मैं लाइव पे कहना ठीक है कि नहीं पता नहीं, बट उषा मैम के साथ जब मेरी मीटिंग हुई, तो जैसे वो कह रही है कि हम गुरु नहीं है, हम टीचर नहीं है, उषा मैम ने मेरे साथ पूरा StreamYard प्रैक्टिस किया. एंड शी इज अ फास्टेस्ट लर्नर. 15 मिनट में उन्होंने पूरा देख लिया, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वो कह रही कि मैं StreamYard पे लाइव कर रही हूँ. तो एवरीबडी, सब लर्न कर रहे हैं, तो हम भी सारा, वी आर ऑल्सो लर्निंग. सो मेक श्योर दैट यू पुट योर सेल्फ इन टू अ लर्नर्स शूज. यू आर नॉट अ सेज ऑन द स्टेज. कहते हैं ना कि आप स्टेज पे खड़े होके हीरो नहीं बनेंगे.
So I think जैसे ये बहुत जैसे महत्वपूर्ण है। उषा मैम ने पहले बताया ना, शी इज टीचिंग फ्रॉम क्लास 1 टू एडल्ट, 1 to 1 से क्लास से लेके 1 to 1 टीचिंग करता है. सो द स्केल जिसने, जैसे उषा मैम ने बताया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ाते हैं, वैसे एक अलग से हमने स्केल देखा है उषा मैम में कि आप एक शिक्षक भी हो, आप एक लर्नर भी हो, आप एक चाइल्ड भी हो, और आप उसमें से जंप करके रोल चेंज करके आप उसके टीचर भी बन जाते हो. सो ये जो स्केल जो चेंज है, वो एक सीखने वाली बात है. और हर एक स्तर पे जाके अगर आप उससे बात करोगे, बच्चों से बात करोगे, तभी बच्चे जाके सीख पाएंगे. एंड दिस इज हाउ एक्चुअली अ टीचर नीड्स टू वर्क. सो पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि आज हमने एक्चुअली सीखा है कि पढ़ाते कैसे है. सो मैम, वंस अगेन थैंक यू वेरी Thank मच you so much, फॉर and योर thank you. एक्सपर्टाइज. All of you, thank you for joining, and we'll see you next Saturday with more interesting sessions. Make sure you join GEG Ahmedabad and Pune. The links have been shared. So we will bring up all the wonderful educators like Usha ma'am to help share, inspire, and empower every educator around the world. Thank you, all of you, and see you. Say bye. Bye. Thanks for joining.